Hello 8th standard students. We were discussing about the topic brain teasers of mensuration lesson. Coming to the fifth sum, the length, breadth and the height of the cuboidal box are 2 meter 10 centimeter, 1 meter and 80 centimeter respectively. Find the area of the canvas required to cover this box. सो एक बॉक्स को कवर करने का है बाहर से, है ना, तो यू हैव टू कवर ऑन ऑल द साइड्स, देन इट इज अ TSA, अंडरस्टैंड. सो एंड उसको पूरा का पूरा कवर करने का, रैप करने का है, देन इट इज TSA. सो व्हाट ऑल आर गिवन, फर्स्ट वी राइट. सो व्हाट इज द शेप, इट इज अ cuboid, isn't it? First write the shape cuboid, and length, how much it is given respectively, length, breadth and height. It is 2 meter 10 centimeter. So convert into centimeter, it will be 210 centimeter, 210. Now breadth is equal to 1 meter, that means 100 centimeter, and height is 80 centimeter. Now coming to the TSA, write the formula. TSA of cuboid, formula is what? 2 into LB plus BH plus LH. Put the values 2 into the square bracket and then the round bracket. Okay, LB, it is a 210 into 100 within the round bracket plus BH 100 into 80 plus LH 210 into 80. It is a 2 into, this one will be 210 and 2 zeros plus 8 and 1, 2, 3. Then it is a 2 zeros, you put it first, 8 ones are 8, 8 twos are 16. Now you add 2 into, in the ones place 0, tens place 0, hundreds place 8, in the thousands place 6, 8, there is a 14 and 1, 15. Now 1, it is a, in the 10,000s place 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. So you got 4, 5, 8, 0, 0. That means multiply, it will be 2 zeros are 0, 0, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 11, 2 4s are 8, 9. So you got 91600 centimeter square. Now if it is a bigger number, then you convert into the meter square. So 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, so 1 meter square is equal to 100 के आप लोग एक्स्ट्रा 2 0, because 100 into 100, so 4 zeros are there, so you have to go left, divide, रिवर्स है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करते हैं, तो you have to divide by 10,000. So it will be 4 decimals. It will go to the decimal place. It is 9.1600. That means 9 point. This gets cancelled. 16 meter square. याद रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करने के वक्त 4 decimal places you have to go. Okay, that was question number 5.
It was direct sum, but only the conversion was there. That was a little bit confusing, that's all. Now coming to the sixth sum. This sum is little bit lengthy. The metallic pipe is 0.7 centimeter thick. So the metallic pipe is 0.7 centimeter thick. This one, this is the thickness. Okay, so this is the thickness of the metallic pipe, and inner radius, so this inner radius is 3.5. They have not given the outer radius, but the length is 5 dm. Length मतलब height. ठीक है? The total surface area you have to find out. In the question itself they have given what you have to do, but otherwise even if they don't give also you have to think. कोई भी एक metallic pipe, metallic cylinder ऐसा रहता है तो थोड़ा the thickness रहता है, तो you have to think the inner cylinder and the outer cylinder. So first we will write there is a what the inner cylinder. Inner cylinder radius कितना दिया है? Radius is equal to 3.5 centimeter. Now thickness कितना दिया है? Thickness is equal to 0.7 centimeter. Now outer cylinder का radius कितना होगा? तो inner cylinder का radius 3.5 और outer radius का के लिए आप लोग प्लस 0.7 करने का है ना. So R is equal to 3.5 plus 0.7 सेंटीमीटर. ओके, हम आउटर रेडियस को बड़ा वाला है इसके लिए कैपिटल R लेंगे, अंदर वाले को स्मॉल r और बड़े को बाहर वाले को कैपिटल R. सो इधर कितना है आपको? 5 plus 7 is 12, 1 plus 3 is 4. So you got 4.2 centimeter. तो थिकनेस 0.7 है, इसके लिए इनर सिलेंडर का रेडियस आएगा 3.5, आउटर सिलेंडर का रेडियस आएगा 4.2. इतना समझ में आया? अभी क्या दिया है? हाइट दिया है ना. द लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट इज हाइट कितना दिया है? हाइट इज इक्वल टू 5 dm. सो 5 dm, लेकिन हमें ये सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट, इट इज 5 into 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. ओके, सो यू गॉट द रेडियस of both the cylinders and also the height. अभी हमें total surface area find out करने का. Total surface area of the what? Pipe. Total surface area of the pipe is equal to, इसके लिए पहले it is only the CSA. याद रखो, CSA मतलब साइड का ही देखने का है. CSA ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है. CSA ऑफ द आउटर सिलेंडर मतलब बाहर से, और प्लस क्या आएगा? CSA ऑफ इनर सिलेंडर. इनर सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 रिम्स. अभी 2 रिम्स, रिम्स मतलब क्या है? ऊपर और नीचे. ये देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ रिम.
ओके, सो ये शेडेड पार्ट ये कितना है ना। सो इट इज अ टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया मतलब ये अंदर का पोर्शन और बाहर का पोर्शन और ये रिम। अभी रिम के लिए क्या करने का है, देखो ये ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल है, बड़ा सर्कल, आउटर सर्कल और इनर सर्कल। तो ये हमें मिलने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द इनर सर्कल, हाँ या ना। एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो ये जगह हमें चाहिए, ठीक है। तो हम अभी उसके फॉर्मूलाज डालेंगे। चलो, अभी CSA ऑफ द आउटर सिलेंडर, CSA के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई RH। 2 पाई R अभी बाहर का है तो 2 पाई RH। अभी अंदर का इनर सिलेंडर का 2 पाई स्मॉल RH डालेंगे। अभी एरिया ऑफ 2 रिम्स, 2 सर्कल आएंगे ना ऊपर और नीचे, इनटू अभी रिम्स के लिए मैं क्या बोली थी, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। सो एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला क्या है, पाई R स्क्वायर, आउटर सर्कल का पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर एरिया ऑफ द स्मॉलर इनर सर्कल। सो एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये सम, मालूम है। तो इट इज अ CSA ऑफ आउटर सिलेंडर, इट इज 2 पाई कैपिटल RH प्लस एरिया CSA ऑफ द inner cylinder that is 2 pi small letter RH plus 2 rims ऊपर और नीचे का। तो इसके लिए 2 इंटू अभी इधर आएगा the area of the outer circle minus the area of the inner circle। outer circle का पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। अभी वैल्यूज इधर ही डालने का नहीं है, देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए थोड़ा हम क्या ये फॉर्मूला में ही थोड़ा एडजस्टमेंट करने का। अभी इसमें देखो आप लोग क्या कॉमन है, ये दोनों में 2 पाई H कॉमन है ना, और क्या बचा, कैपिटल R एंड स्मॉल r। अभी इधर 2 कॉमन है, लेकिन इधर अंदर क्या है, पाई भी कॉमन है। सो 2 पाई और ब्रैकेट के अंदर आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अभी ये दोनों में 2 पाई कॉमन है ना, ये और ये, दिस वन एंड दिस वन, इसमें कॉमन क्या है 2 पाई। तो क्या बचा अंदर क्या बचा, H है ना, 2 पाई बाहर लेंगे तो H एंड R प्लस R, और इधर 2 पाई बाहर लिए तो इधर क्या बचा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। समझ में आ गए। तो इधर पहले इधर तक आप लोग फिर से समझ के ले लो, फॉर्मूलाज डाले हैं। तो ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई H, उसको बाहर ले लो। इसमें क्या बचा, 2 पाई H छोड़कर कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस, अभी इधर 2 ऑलरेडी बाहर है, इसमें कॉमन क्या है पाई, तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बचा। अभी ये दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई, उसको बाहर ले लो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो, H और R प्लस R, और इधर सिर्फ ये बचेगा। हो गया इतना। तो अभी हम
वैल्यूज डाल सकते हैं, है ना। तो वैल्यू डालो 2, पाई का वैल्यू 22/7 और h का वैल्यू कितना मिला हमें 50 और कैपिटल R इज 4.2 प्लस R स्मॉल r इज 3.5 प्लस R स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4.2 स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट के अंदर 3.5 स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 इंटू 22/7 इंटू ब्रैकेट ओपन ये 50 इंटू 2 + 5 इज 7, 4 + 3 इज 7, तो इधर आया 50 इंटू 7.7 प्लस अभी ये आइडेंटिटी से आप लोग याद कर सकते हो, इट इज a + a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ऐसे करते हैं 4.2 + 3.5 और 4.2 - 3.5। ठीक है, नहीं तो उसके स्क्वायर सब फाइंड आउट करने का उससे अच्छा ऐसे। नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू अभी इसको वैसे ही रखेंगे 50 इंटू 7.7 प्लस इधर कितना है आपको 7 और 7 इंटू इधर इंटू है ना 12 - 5, 12 - 5 इज 7 और इधर 3 बचा, 3 - 3 इज 0। ठीक है, अभी 2 इंटू 22/7 इंटू अभी इसमें कॉमन क्या है 7.7 है ना, 7.7 इज कॉमन, इधर बचा 50, बीच में प्लस, इधर आया 0.7। So that means 2 इंटू 22/7 इंटू 7.7 इंटू है ना, इधर आया 50.7, 50 + 0.7 इज 50.7। अभी 7 हो गया, अभी आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 2 22 44 है ना, फिर आप लोग 44 फिर 11 वो सब मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ आप लोग मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 2453.88। आंसर आएगा कितना 2453.88। Understood? All students? So first what all you have to do? So this is what CSA is in total surface area. So it is centimeter square. So I'll explain again. First the cylinder, it is a pipe. Okay, pipe. So inner circle and there is a outer circle. Thickness is given. So inner cylinder has got the radius 3.5 and the thickness is 0.7. So outer cylinder the radius will be 4.2 because we have to add. The height is 5 dm. So convert into cm, it will be 50 cm. Total surface area of the pipe means what? The inner surface area. So it is inner surface area, that is CSA, outer surface area CSA, दोनों ऐड करो और बाहर का ऊपर और नीचे का
रिम्स, मतलब रिम्स ऐसे दिखेगा। सो ऊपर और नीचे इसके लिए 2 areas of 2 rims because it is up and down. So इसके लिए CSA ऑफ आउटर सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच, लेकिन इधर आर कैपिटल डालने का, और CSA ऑफ इनर सिलेंडर द स्मॉल 2 पाई आर एच प्लस 2 रिम से इसके लिए 2 इंटू रिम का एरिया कैसा होता है, इट इज द एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द इनर सर्कल. So area of the outer circle is pi r squared, capital R squared minus pi small r squared. अभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये दोनों में 2 पाई h को बाहर ले लो, बचा r एंड r. अब इधर 2 और इधर पाई बचा, तो r स्क्वायर्ड एंड माइनस r स्क्वायर्ड. और ये दोनों में फिर से कॉमन क्या आएगा, 2 पाई. तो इधर बचा h r प्लस r और इधर बचा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. अभी वैल्यू डालो, 2 इंटू 22/7 देन 50 जो भी है डाल. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिर से आप लोगों को स्क्वायर सब फाइंड आउट करने के लिए तकलीफ है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये आइडेंटिटी वाला ये यूज़ करने का. सो इट इज़ a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b. तो वैसे करने के वक्त आपको क्या मिला, ये सब पहला जैसा ही रखने का. अभी इधर आया 7.7, इधर आया 0.7. अभी ये दोनों में द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो 7.7 को बाहर ले लो, इधर बचा 50, इधर बचा 0.7, दोनों का ऐड करो. तो अभी 2 इंटू 22/7 7.7 और ये आया 50.7. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस मच. ओके, होप एवरीवन अंडरस्टूड द सम. A difficult sum we know, but understand and do it. Okay then, bye. Thank you. Take care.